lakh for the tomb, sir. If we succeed in getting that, it will bring in the tourism. It will bring in the tourism to our city of Hyderabad, sir. Sir, at the same time, Honorable Panel Speaker, sir, you might have heard and you are aware that कि मैं अपने जानिब से मुतालबा किया था उस वक्त की हुकूमत को और केटी रामाराव साहब को भी कि शेख पेट से लेकर टूम्स तक, गोलकुंडा फोर्ट तक, लेट अस रन अ ट्रैम्प, टूरिस्ट इंप्रूव होगा। और फिर वहां पर एक और जमीन है निजाम ट्रस्ट की, वो जमीन को निजाम ट्रस्ट से लेकर जो टूरिस्ट गोलकुंडा फोर्ट को देखने आ रहा है, हम उसको डेवलप कर सकते हैं। वहां पे एक लाड़ बाजार बक्के जैसा एक बाजार बना सकते हैं, सो दैट द टूरिस्ट कमिंग टू गोलकुंडा फोर्ट नीड नॉट गो टू लाड़ बाजार, दे गेट अ स्मॉल मिनी लाड़ बाजार इन दैट एरिया। गोलकुंडा फोर्ट के पास एक जमीन है, उसका भी प्रपोजल बना है, लैंड एक्विजिशन हो चुका है और कलेक्टर साहब के पास वो प्रपोजल है। मैं आपके जरिए मिनिस्टर साहब से मुतालबा करूंगा कि आप उसको भी देखकर एक अमाउंट सैंक्शन करके अगर उसका वर्क भी अगर शुरू कराते हैं तो इससे टूरिज्म डेवलप होगा। गोलकुंडा फोर्ट में कई टूरिस्ट आते हैं सर। सो द एलोकेशन ऑफ रुपीज 182.38 crores made to DHMC in the state budget last year, but as per the note on demand and outcome budget MAUDD for the year 24-25, the actual release and expenditure was a big zero, sir. Big zero in 23-24 compared to the modest rupees 31.45 crores in the year 22-23, sir. In the current year's budget, the GHMC is allocated rupees 2,693.47 crores, which include rupees 2,654 crore assistance for the newly named Hyderabad City Innovative and Transformation Infrastructure, HCity. The Hyderabad Metro Water Sewerage Service Board also faced a similar fate, as the allocation of rupees 1,961 crore and the actual expenditure of rupees 331.25 crore in 23-24 as against actual expenditure of rupees 1,925 crores in the year 22-23, sir. Sir, HMDA was allocated, Hyderabad Metro Water Works has been allotted rupees 3,395. HMDA was allocated rupees 210 crore and actual expenditure was 350 crores in the year 23-24. The allocation for HMDA in the current year is 710 crores, sir. The Hyderabad Metro Rail was allocated rupees 2,427 crore, but the actual expenditure was rupees 988 crore in 23-24 as against 2,377 crores in 22-23, sir. Sir, when I talk about Hyderabad Metro, sir, through you, I would like to request the government. Sir, there is the road widening which needs to be taken up before the commencement of the old city corridor. So, sir, my humble submission through you to the government is कि वो मेट्रो का काम पटरियां डालने का हो या डब्बे बनाने का काम हो, वो जभी भी होगा, at least we can take up the road widening work. Let us initiate the road widening and do the road widening that is required for this corridor, sir. Sir, in the current budget, HMRL is allocated rupees 1,150 crores, including rupees 500 crores each for HMRL and Old City and 100 crores for airport connectivity and 50 crores for MMTS phase 2, sir. Sir, when we talk about MMTS, sir, MMTS के ताल्लुक से भी मैं कहूंगा कि लॉन्ग टाइम डिमांड है हमारा, ओल्ड सिटी में भी MMTS का एक लाइन जाती है, उसको डबल करने के लिए मुतालबा कर रहे थे। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि उसको स्टडी करिए, एक सिंगल लाइन है उसको डबल करिए, तो उससे होगा ये कि ट्रैफिक और लोगों को और सहूलत होगी। जब तक कि मेट्रो आती है, आएगी एक और एक लाइन ओल्ड सिटी में MMTS की भी आ जाएगी। फॉर मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट बजट एलोकेशन of rupees 200 crores was made and the actual expenditure is rupees 11.16 crores in the year 23-24, but surprisingly the expenditure in 22-23 is stated to be rupees 200 crores on page number 102 of outcome budget 24-25. 200 crore 24-25, sir, ho chuke hain keh rahe hain. In the current year, the allocation for Musi Riverfront development is rupees 1,500 crore. For the Khuli Qutub Shah Urban Development Authority was allocated rupees 12 crore and actual expenditure was rupees 10.57 crores in 22-23 as against rupees 11.45 crores in the year 22-23. The Khuli Qutub Shah Urban Development Authority is allocated rupees 13.37 crores in the current year, which is just enough for payment of staff salaries and allowances, sir. Sir, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि खुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम कांग्रेस के दौर में जब अंजया साहब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त किया गया था।
और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि पुराने शहर को डेवलप किया जाए, लेकिन पुराने शहर की डेवलपमेंट तो रुकी हुई है और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को मुकम्मल नाकारा बना दिया गया है। मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि पुराने शहर की तरक्की के लिए कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को आप मजबूत कीजिए, उसको पैसा दीजिए। चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन का प्रोजेक्ट कुली कुतुब शाह को दीजिए। आप लाड़ बाजार का जो फसाड का जो काम है बनाने का, वो आप जो है सो कुली कुतुब शाह को दे सकते हैं। और टूरिस्ट जो चार मीनार को देखने आ रहा है, वहां चार मीनार बस स्टैंड के पास एक पार्किंग लॉट को बनाना है, वो पार्किंग लॉट के काम को आप एक पीपीपी मोड पर दे सकते हैं। और खिलवत के पास भी पार्किंग का एक जगह है, पुराना पेंशन पेमेंट का ऑफिस था, वो खाली हुआ, उस पर भी काम होना है। फिर हमने चौक मुर्गी के पास, वहां पे उसको मुर्गी चौक को डिमोलिश करके नई बिल्डिंग बनाने का हमने एक जियो हासिल किया था, मंजूरी हासिल की थी, लेकिन वो काम भी रुका हुआ है। आप फिर नए पुल पे 2 ब्रिजेस डालकर चार मीनार पेडेस्ट्रियनाइजेशन के जितने हॉकर्स हैं उनको रिहैबिलिटेट करिए। आप नए पुल के सामने 2 ब्रिजेस, सालार जंग म्यूजियम के सामने एक ब्रिज डालिए, ताकि उनके लाइवलीहुड्स उनके मुतासर नहीं होना और वो सारे के सारे हॉकर्स वो ब्रिज पर आ जा सकते हैं और चार मीनार को पेडेस्ट्रियनाइजेशन का एक अच्छा प्रोजेक्ट, कामयाब प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं जिसके टूरिस्ट आएगा। सर, देयर इज लॉट ऑफ टूरिस्ट, 10-10, 20-20 हजार लोग एक दिन में आते हैं चार मीनार को देखने के लिए, लेकिन अफसोस कि आने वाले टूरिस्ट को टॉयलेट को जाने के लिए टॉयलेट्स भी सही नहीं है। सर, इट इज सैड एंड इट ब्रिंग्स अ बैड नेम टू द सिटी। वी हैव बीन कंटिन्यूअसली डिमांडिंग टॉयलेट। जब हम डिमांड करें, डब्बे लाकर रख दिए, डब्बे लाकर रख दिए तो कोई सफाई वाला नहीं था। सर, वी हैव टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू द people who would be responsible of cleaning the toilet, sir. It is very sad that the tourists come and they always complain, sir. तो मैं उम्मीद करूंगा कि मैंने जो बातें उठाई हैं इस पर आप तवज्जो देंगे। मूसी रिवर डेवलपमेंट के लिए हमारी पार्टी पूरा ताउन करेगी हुकूमत से, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि मूसी डेवलप हो, मूसी साफ हो और मूसी से गंदगी खत्म हो और वहां पर मूसी के खूबसूरती के जरिए नए रोजगार के मौके पुराने शहर के लोगों को मिले और पुराने शहर में तरक्की आए। इसके लिए हम अपनी जानिब से मुकम्मल ताउन करेंगे, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि सबसे पहले जो जरूरी चीज है, यू नीड टू फिक्स द बाउंड्रीज ऑफ मूसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप टिल नाउ द बाउंड्रीज ऑफ मूसी हैज नॉट बीन फिक्स्ड। प्लीज फिक्स द बाउंड्रीज फर्स्ट and then see what needs to be demolished, how many structures are coming in that project, and what is the proposal of compensation for those people. Then we can proceed further ahead, sir. Sir, GHMC is not getting its due share from the state government towards non-plan and plan grants, property tax on state property, share of motor vehicle tax, VAT and other assigned revenues such as professional tax, sir. Sir, this is very important. I have been screaming, shouting and saying, sir, GHMC का राइटफुल शेयर है, और वो राइटफुल शेयर क्या है कि आप टुवर्ड्स नॉन प्लान एंड प्लान ग्रांट्स, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन स्टेट प्रॉपर्टीज GHMC को नहीं आ रहा है, शेयर ऑफ मोटर व्हीकल टैक्स GHMC को नहीं आ रहा है, वैट नहीं आ रहा है, एंड द अदर असाइन्ड रेवेन्यूज सच एज प्रोफेशनल टैक्स भी GHMC को नहीं आ रहा है। ये GHMC का जो पैसा है GHMC को दीजिए, आप देंगे तो GHMC मजबूत होगा। सर, GHMC own tax revenues are not enough to fund its establishment expenditure and the maintenance of civic amenities under this jurisdiction, sir. Sir, when I talk about GHMC, sir, through you I would like to bring to the notice of the government a very important, sir. You have been very kind enough of taking up and announcing that LRS would be taken up in phased manner. सर, GHMC एरिया में BRS है, बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम, which has been pending from years, sir. When we need to pursue the case, sir. If we pursue the case and get an order, one time settlement can be asked, and if the court permits, then we can settle it for one time and then have strict rules and regulation where we do not allow any illegal structure coming up, sir.
एक वक्त क्लियर कर देंगे। और फाइन डालिए, बड़ा फाइन डालिए सर, और जो पैसे भरता है उनके बिल्डिंग्स को रेगुलराइज करिए। आई एम श्योर विद दैट more than some 10,000 crores will come to GHMC, sir.